The countdown for the polls has begun right ahead of the Phase 1 polls of the Lok Sabha elections. In a big show of strength, the Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav addressed a joint press conference in Ghaziabad, marking their first public appearance together since the INDIA bloc announced its candidates from the state of Uttar Pradesh. Now, both the Sions left no stone unturned in taking a jibe at the BJP, speaking on a host of issues including poverty, unemployment, seat sharing and electoral bonds. The duo hit out at the BJP for diverting from issues. They also made their predictions for the polls. While Rahul Gandhi said the party is yet to decide on Amethi and Raebareli, the leader made a big political prediction. What Rahul Gandhi had to say was his claim was that the BJP will only be limited to 150 seats, while the INDIA bloc will prevail with a vast majority. This is while the SP Sion Akhilesh Yadav claimed that the change in the country will begin with the state of Uttar Pradesh. Now, to get us more, we're crossing over to my colleague Adib. Adib, tell us more about the key takeaways, the key highlights of that joint press conference by both Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav. Well, it was a joint press conference by Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav where Rahul Gandhi hit out at the BJP, saying that the BJP is diverting attention. They are not paying attention to the main issues, but rather than PM is diverting issues. He also said that the BJP will be limited to 150 seats in the country. However, when asked about Amethi and Raebareli, he said that the Congress party CEC will decide, and whatever the CEC's decision will be, I will be following that. This is what Rahul Gandhi has to say on Amethi and Raebareli. Akhilesh Yadav also went on to say that the BJP is diverting from the real issues and PDA will defeat NDA, and we are here to show that the PDA will work out and the PDA will be defeating NDA. Absolutely. Adib, thank you for joining us and getting us more on that. Now we're going to listen into what the political leaders had to say. मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर सीट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी। We're actually going to be welcoming Mr. Rakesh Tripathi from the BJP on the broadcast with us. Mr. Tripathi, thank you so much for joining us here at Mirror. Now, what we want to ask you about is, the Lok Sabha elections are just about to begin. Phase 1 is going to begin day after on the 19th. Ahead of that, we've just seen a press conference addressed by Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav. One statement that Rahul Gandhi has had to make is he's saying that the NDA, the BJP, is also not going to be getting 400 seats, not even going to be getting 300. What his prediction is that the BJP and the NDA overall is going to get 150 seats. What do you have to say in response? मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और जब संवाददाता ने ये सवाल पूछा कि आपकी कितनी सीटें आएंगी, तो अपनी सीटों को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटों को लेकर के प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि कोई राजनीतिक दल अपनी क्षमता का आकलन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो दूसरे की क्षमता का आकलन करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत, अपनी उपलब्धियों, अपने कामकाज के आधार पर गरीबों के जीवन में जो कल्याणकारी परिवर्तन किए हैं, उसके आधार पर हमने जो माइक्रो लेवल बूथ पर अपनी प्लानिंग की है और नेशनल लेवल पर जो काम किया है और राज्य की सरकारों ने जो हमारे काम किया, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी सरकार बनाएगी और अब की बार 400 पार के आधार पर बनाएगी। सच बात यह है कि विपक्ष डरा हुआ है, घबराया हुआ है। स्वयं राहुल गांधी अब तक उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। अमेठी और रायबरेली से कैंडिडेट कौन होगा ये घोषित नहीं कर पा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी अब तक 1 दर्जन उम्मीदवार अपने बदल चुकी है, एक एक सीट पर 3-3 बार उम्मीदवार बदल चुकी है। इससे उनकी घबराहट का पता चल रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल घबराए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार खाता कैसे खोला जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य रखा है। जैसे राजस्थान में जीतते हैं, जैसे हिमाचल में जीतते हैं, जैसे दिल्ली में जीतते हैं, जैसे उत्तराखंड में जीतते हैं, जहां 100% सीटें जीतते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश ने भी 100% सीटें जीतने का तय किया है और ये घबराहट इसी नाते आज साथ जुट करके आए हैं, लेकिन ये आते आते भी बहुत देर कर दी है। अब जब पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, उसकी सांझे वेला पर ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए हैं। आप कल्पना करिए कि इनके कार्यकर्ता अब कब तक साथ आ पाएंगे। जब पहला चरण बीतने जा रहा है तब तक नेता साथ आ पाए हैं, तो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता तो चुनाव परिणाम के बाद ही साथ आने की कल्पना कर सकते हैं। जी Tripathi ji, thank you so much for joining us and telling us more about the BJP's perspective on this. Again, the BJP reiterates the fact that they will be getting 400 seats and above. Now, we're also being joined by Anurag from the SP, Anurag Bhadoria from the SP. Bhadoria ji, आप बता सकते हैं, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना है कि राहुल गांधी ने एक प्रेडिक्शन दिया था कि भाजपा तो 150 सीट्स लेके आएंगे इस इलेक्शंस में। आपको क्या कहना है इस पे? मुझे तो लगता है इसको आप ब्रेकिंग में चलाइए, रोज से लाइए और सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि इससे ज्यादा बीजेपी की आने वाली नहीं है सीटें। और ये चूंकि आप चलाएंगे नहीं, समस्या ये भी है क्योंकि आप अगर 400 पार तो चलाएंगे, लेकिन 150 पे भारतीय जनता पार्टी 150 पार नहीं करेगी। ये जनता पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। मीडिया की रिपोर्ट 400 पार हो सकती है, क्योंकि मीडिया का आप जानते ही हो, आप भी समझते हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पे भारतीय जनता पार्टी जीरो है। वहां पे 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आ रही। कौन देगा? महिलाओं पर अत्याचार हुआ, महिलाएं दे नहीं रही, क्योंकि आप वोट देंगे नहीं, आप खुद एक महिला है। आप जानते, युवा देगा नहीं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। छात्र देंगे, उन पर लाठियों की बारिश होती है, उनका पेपर लीक होता है। किसान देंगे नहीं, किसान की मौतें हुई हैं, किसान धरने पे बैठा है, किसान की एमएसपी नहीं मिली है। तो आप बताइए कौन दे रहा है? युवा नहीं दे रहा है, छात्र नहीं दे रहा है, किसान नहीं दे रहा है, महिलाएं नहीं दे रही, तो वोट कहाँ से आएगा? आसमान से तो आएगा नहीं। इसलिए लोगों ने तय कर लिया इस बार कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जी भदौरिया जी, आप एक चीज बताओ, क्योंकि ये प्रेडिक्शन तो ये राहुल गांधी बता रहे हैं कि 150 सीट लेके आएंगे इस चुनाव में भाजपा, पर आपका क्या प्रेडिक्शन है? एसपी और कांग कितने सीट्स लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में? अरे हम लोग तो इंडिया गठबंधन कम से कम इस बार 320-325 सीटें लेके आ रहा है। और ये आप देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगलिंग करती नजर आएगी कि जैसे कैंडिडेट उन्होंने दिए, जिस तरह का उनका काम है। उनका काम क्या है? मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा वसूल करना, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करना, जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं उनको बचाना, क्या है उनका? युवाओं को, बेरोजगार युवा जिस सरकार में आत्महत्या कर रहा हो, जहाँ पे किसानों पे लाठियां बरसा जा रही हो। ये हिंदुस्तान किसान देश की आत्मा होता है, छात्र देश की रीढ़ की हड्डी होता है युवा यहाँ का। उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। रोजगार के नाम पे आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, तो कौन वोट देगा? भाई सबको अपना रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा तो खुद ब खुद खरीद लेंगे। All right, Mr. Bhadoria, unfortunately we'll have to leave it with that. We're a little short on time, but we do thank you for joining us on the broadcast. We'd also like to thank Mr. Tripathi for joining us on the broadcast and giving us their perspectives. So just ahead of the elections, which are again going to be beginning just the day after on the 19th, there seems to be a bit of a war when it comes to calculations. With the Congress saying the BJP is going to be getting 150 seats, the BJP continues to reiterate a statement they've made in the past, saying that they're going to get, the NDA overall is going to be getting over 400 seats. And we've just also spoken to a representative of the SP saying that the Congress, the India Gathbandhan, which is the INDI bloc, they're going to be getting between 320 and 350 seats. Now, what the actual reality is going to come out on the 4th of June, which is when the results are going to be released.